हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे हार्मोन की जो कि जिसको जानते हैं हम लोग हार्मोन ऑफ अबेंडेंस के रूप में। जब भी हम लोग कुछ खाते हैं तो हम लोग को एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और हम लोग कुछ ज़्यादा खाते हैं तो वो ग्लूकोज जो है कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में, और ज़्यादा खाते हैं तो ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड्स एंड अल्टीमेटली इन द फैट। यानी हम लोग जब कार्बोहाइड्रेट भी खाएंगे तो हम लोग मोटे होते जाते हैं, जबकि हम लोग फैट नहीं खा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो हमारे को ग्लूकोज को भी कन्वर्ट कर देता है फैट में, या स्टोरेज ऑफ फैट बढ़ा रहा है, फैटी एसिड बढ़ा रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं हार्मोन ऑफ अबेंडेंस। चलिए आज बात करते हैं इंसुलिन के बारे में। This is pancreas, located in the curve of the duodenum. This one, the small distant part, and it is having a head, body, and tail portion, 12 to 15 centimeter in length. It is a retroperitoneal organ, and it is having clusters of cells. The roughly 99% of the cells of pancreas are acinine cells, and only 1% cells are the exocrine cells, and these exocrine cells are mostly like tiny dots you will see in the tail portions. So mostly in the tail portions, these like islets. That's why the name has been given the islets of Langerhans or pancreatic islets. See, there is small dots, islets of Langerhans scattered in the tail portion mostly, and this one is the bigger picture of these islets. And in these islets you can see the arrangement of cells like this. They are having alpha cells, F cells, D cells, and beta cells. Beta cells are just in the center portion, and then in the outer portion this is are having alpha cells. D cells are in between the alpha cells and beta cells. This one is the D cells. F cells are very small cells which are scattered around. See, in this yellow portion is the acinine or the exocrine part of the pancreas, and this one is the islet of Langerhans, and the arrangement of cells like this. The center part is taken by the beta cells, this outer part by the alpha cells, and this delta cells are there, D cells are in between. Alpha cells, or also known as A cells, only 17%. Beta cells, B cells, the 70%, that means mostly part is with the beta cells. Delta cells or D cells, only 7%, and few cells are F cells. Alpha cells secretes glucagon. Beta cells secretes insulin, the most important hormone of the pancreas. D cells somatostatin. Statin means it will just like inhibition work. And F cells secrete the pancreatic polypeptide. D cells secretes somatostatin, and that somatostatin is having inhibition function on the beta cells also and the alpha cells also. See the beautiful location, that is, it has been given between the beta and the alpha cells. That means it will act as a paracrine on the beta cells also and the alpha cells also. It will inhibit the insulin secretion from the beta cells, as well as it will also inhibit the glucagon secretion from the alpha cells. See, this one is the beta cell producing the insulin. So this beta cell will take amino acid and ATP from the blood directly, and the nucleus of this will say the DNA will tell the RNA, and then RNA will be the messenger mRNA. This mRNA will tell to the rough endoplasmic reticulum to produce new kind of protein. This protein is the hormone insulin, which is a 51 amino acid containing protein chain. So this rough endoplasmic reticulum will be producing, and this cycles में ये ऐसे close कर देंगे, and then finally this hormone is produced like this. इंसुलिन बनने के लिए पहले बनता है प्री प्रो इंसुलिन, then pro insulin, and then insulin. See, this is a diagrammatic representation of insulin production. Insulin is having two chains, A chain and
P chain, A chain having 21 amino acid in this, and this B chain is having 30 amino acids in this, and this A and B chain are having 2 disulfide bonds, and the A chain which is having 21 amino acid is having one single disulfide bond. तो इंसुलिन बनने से पहले क्या होता है? प्रो इंसुलिन, एंड प्रो इंसुलिन से पहले क्या होता है? प्री प्रो इंसुलिन. तो एक लॉन्ग चेन प्रोटीन बना, एंड देन उसमें से कुछ काट छाट हुआ, कटिंग हुआ और ऐसे फोल्ड हुआ तो बन गया प्री प्रो इंसुलिन, एंड देन इट इज़ पैक्ड इन द वेसाइकिल, एंड फाइनली उसको कटिंग हुआ. कटिंग के बाद यहाँ से एक सी चेन अलग एक्स्ट्रा निकल गया, जैसे सी पेप्टाइड, एंड ए एंड बी चेन्स लाइक दिस. दिस इज इंसुलिन हैविंग A chain 21 amino acid and B chain having 30 amino acids. This is the sequence of the amino acids in that A chain, and this is the sequence of amino acids in the B chain. And you can see the disulfide bonds between the A chain and B chain. This one is one and this one is the second disulfide bond. And this one is the disulfide bond in the A chain. Now the functions of insulin. It is mainly an anabolic hormone. Insulin helps to increase the storage of glycogen in the muscles and liver. यानी जो भी ग्लूकोज अपटेक कराया सेल्स के अंदर, वो ग्लूकोज फाइनली कन्वर्ट हो गया ग्लाइकोजन में और स्टोर हो गया. एंड स्टोरेज ऑफ फैट इन द एडिपोज टिश्यूज एंड प्रोटीन्स चीफली इन द स्केलेटल मसल्स. यानी ग्लाइकोजन स्टोर कराया, फैट का स्टोर कराया और प्रोटीन का स्टोर कराया. एनाबॉलिक फंक्शन है और सब कुछ देखिए इकट्ठा करता जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हार्मोन ऑफ एबंडेंस. मेजर टारगेट ऑर्गन्स ऑफ इंसुलिन आर 3: लिवर, adipose tissues and muscles. Brain, kidney, RBCs, they don't require insulin for the uptake of glucose, and this liver, adipose tissue and muscles, they need insulin for uptake of glucose. Remember it. The net major anabolic effect of insulin, शॉर्ट में बोलेंगे तो लिवर में क्या करेगा? ग्लाइकोजेनेसिस इंक्रीजेस, यानी ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन करा दिया ताकि वो स्टोर हो, जो जितना भी ग्लूकोज है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाएगा. और ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन को ब्रेक करके वापस ग्लूकोज बनाने वाला है उसको कम कर देता है, यानी ग्लाइकोजेनोलाइसिस को इनहिबिट कर देता है. एडिपोज टिश्यू में क्या करेगा? ग्लूकोज अपटेक राइजेस, ग्लूकोज का अपटेक एडिपोज टिश्यू में हुआ, एंड दिस ग्लूकोज फॉर्म्स फैट. जब ग्लूकोज और इकट्ठा होता गया, एनर्जी से उतना बचेगा नहीं, तो अल्टीमेटली क्या होगा? वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा. लाइपोलिसिस डिक्रीजेस, ब्रेकडाउन कम हो रहा है, एंड रिलीज ऑफ फ्री फैटी एसिड्स फ्रॉम एडिपोज टिश्यूज डिक्रीजेस. फ्री फैटी एसिड्स नहीं आ रहे, हैंस लिवर रिसीव्स लेस अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड्स. कीटो एसिड फॉर्मेशन इन लिवर डिक्रीजेस, thus adipose tissue fat in the body increases and the person becomes obese. In short, fat is stored. मसल में क्या करेगा? अपटेक ऑफ ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स इंक्रीजेस. वहाँ पे भी ग्लूकोज का अपटेक एंड अमाइनो एसिड्स का अपटेक बढ़ा दिया. दीज अमाइनो एसिड्स सिंथेसाइज प्रोटीन, नए क्योंकि मसल बनना है, प्रोटीन बनना है, तो सिंथेसाइज कर चालू है हमें. ब्रेकडाउन ऑफ मसल प्रोटीन डिक्रीजेस, मसल प्रोटीन का ब्रेकडाउन कम कर देता है. हेंस रिलीज ऑफ अमाइनो एसिड्स, इसलिए अमाइनो एसिड रिलीज नहीं होते हैं, विच कैन बी सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोज सिंथेसिस. क्योंकि अगर अमाइनो एसिड निकलता तो वो अमाइनो एसिड से बॉडी क्या करती? ग्लूकोज बना लेती. तो ग्लूकोज और ना बने तो क्या करेगा? अमाइनो एसिड को भी नहीं निकालता है, यानी नियोग्लूकोजेनेसिस नहीं होने देता है. इन शॉर्ट, मसल प्रोटीन इंक्रीजेज एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी ग्लूकोज फॉर्मेशन फ्रॉम अदर देन द कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, यानी फैटी एसिड से या प्रोटीन से, अमाइनो एसिड से जो ग्लूकोज बन सकता था, ठीक है, उसको वो नहीं बनने देता है. तो इंसुलिन बेसिकली करता क्या है कि जब इन सपोज दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन ऑफ स्केलेटल मसल और लिवर सेल, तो क्या करेगा? इंसुलिन जब भी थ्रू द रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के पास अटैच होगा, तो देन इट विल टेल टू द सेल टू इंक्रीज द एक्टिविटी एंड मेक मोर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स. सो दीज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स विल गो टू द सेल मेम्ब्रेन, धीरे धीरे देखिए यहाँ पे फिट हो जाएगा.
फिट होने के बाद ऐसा ये फंक्शन शुरू कर देगा। अब ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फिट हो गए हैं एंड ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इनसाइड द सेल होने लगता है। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है, इसलिए उसका जो रिसेप्टर होगा वो भी सेल मेम्ब्रेन के पास में रहता है, सेल मेम्ब्रेन पर ही रहता है। एंड दैट रिसेप्टर प्रोटीन इज हैविंग 2 अल्फा सब यूनिट्स एंड 2 बीटा सब यूनिट्स। ये देखिए, दिस इज द रिसेप्टर प्रोटीन ऑफ इंसुलिन। अल्फा सब यूनिट्स देख रहे हैं बाहर निकला हुआ है सेल मेम्ब्रेन से इन द ECF, एंड बीटा सब यूनिट्स थोड़ा सा अंदर आ रहा है और इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। So once the insulin is attached to this receptor, the whole receptor will go inside the cell. जाके अंदर जाके वो सेल के पास इंसुलिन दे देगा और अपना काम करेगा, वापस जाके सेल में वापस फिर से मेम्ब्रेन में फिट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड रिसाइकलिंग ऑफ द रिसेप्टर। वैसे ही जैसे वही 2 अल्फा सब यूनिट्स आउटसाइड साइड में, 2 बीटा सब यूनिट्स ऐसे लगी हुई हैं एंड द रिसेप्टर है, यहाँ से इंसुलिन का बताया। तो रिसेप्टर जो ग्लूकोज का रिसेप्टर्स थे उसको वापस जो ग्लूकोज के चैनल्स हैं वो वापस यहाँ पे लगा देता है। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट चैनल्स हैं वो होते हैं लगभग 13 तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं SGLT। जब वो यहाँ पे लिखा है 1 2 एंड GLUT 1 2 ऐसा करके, S मतलब यहाँ पे सोडियम से, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, यानी ये दिस इज सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। दैट मीन्स these transport proteins will transport sodium with glucose. That's why it is known as co-transporters. ठीक है, ये जो co-transporters होते हैं ये कहाँ लगे रहेंगे? ये लगे रहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में और रीनल ट्यूब्यूल्स में सोडियम के साथ साथ ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है और वो अंदर खींच लिया जाता है। ये तो हो गया सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे ATP खर्च होता है। लेकिन ये हुआ फैसिलिटेड ट्रांस डिफ्यूजन। इसमें क्या होगा? इसमें ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, ये था SGLT मीन सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, ये है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। सो दिस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स 1 2 3 4 5 6 यू कैन सी। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स ये हैं, जैसे कुछ कुछ रहेंगे, जैसे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ये प्लेसेंटा में रहेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर में रहेगा, एंड दिस वन इज हैविंग इन द बी सेल्स। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 3 रहेगा, ये रहेगा ब्रेन, प्लेसेंटा, किडनी। ठीक है, ग्लूकोज 3। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं 3 2 1, ये सब जो क्या है ये इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, विदाउट इंसुलिन दे कैन टेक अप ग्लूकोज। आता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, ये होता है इंसुलिन डिपेंडेंट। दिस इज द इंसुलिन स्टिमुलेटेड ग्लूकोज अपटेक ट्रांसपोर्टर। ये काम करेगा जो कि हमारे टारगेट ऑर्गन थे, कौन कौन से? स्केलेटल एंड कार्डियक मसल, एडिपोज टिश्यूज, ठीक है, एंड लिवर सेल्स। क्या काम करेगा? ग्लूकोज 4। तो जब ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 जो है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जब सेल मेम्ब्रेन पे फिट हो जाएगा तो वो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड द सेल। फंक्शन ऑफ इंसुलिन ऑन कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इट विल क्रिएट द हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि ब्लड में से ग्लूकोज को हटा देता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करता है, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल कर देता है। जब भी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो इंसुलिन निकलता है एंड दैट इंसुलिन विल रिमूव द ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड एंड अल्टीमेटली नॉर्मल लेवल विल बी मेंटेन्ड। ग्लूकोज को हटाने के लिए क्या करेगा ब्लड में से? पहले काम करेगा इट विल इंक्रीज द ग्लूकोज अपटेक। ग्लूकोज अपटेक बाय द सेल्स, स्केलेटल मसल्स, लिवर, ठीक है, तो वहाँ पे ग्लूकोज उनके अंदर जाएगा। इट विल इंक्रीज द पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, तो वहाँ से हट गया ग्लूकोज। और क्या किया? जो ग्लूकोज अगर लिवर में पहुंचा एंड स्केलेटल मसल्स में, दैट ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। सो इट इज़ इंक्रीजिंग द ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस विल बी इंक्रीज्ड। और क्या करेगा? ग्लूकोज वापस ना आ जाए, यानी ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन ना हो, तो क्या करेगा? ग्लाइकोजेनोलाइसिस को डिक्रीज कर देता है। इट विल इनिबिट द ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन की लाइसिस को इनिबिट कर देता है ताकि ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर ना आए। क्लियर? और क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनिबिट करता है। ठीक है, हो सकता है कि बॉडी अमाइनो एसिड से या फ्री फैटी एसिड से ग्लूकोज बनाती है, सो उस प्रोसेस को भी ये इनिबिट कर देता है। अल्टीमेट क्या होगा? इट विल कॉज द हाइपोग्लाइसीमिया। दिस इज वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट whatever glucose has been taken, it will use for the energy production.
तो वॉट एवर ग्लूकोज इज टेकन फर्स्ट इट विल यूज फॉर द एनर्जी, एटीपी में खर्च हो जाएगा। तो एटीपी में खर्च होने का भी एक लिमिट होता है कि जितना एडीपी होगा बॉडी के सेल के अंदर उतना ही तो एटीपी बनेगा। तो एग्जॉस्ट हो गया, सारा एटीपी एग्जॉस्ट हो गया तो एटीपी बन गया और एनर्जी बन गई, खत्म हो गए, तो एटीपी स्टोरेज हो गया। अब जब एडीपी सारे खर्च हो गए तो क्या होगा, जितना ग्लूकोज और अंदर आ रहा है तो दैट ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एज एन स्टोर, तो वो स्टोर के रूप में इकट्ठा होने लगता है। whenever there is a need of glucose that glycogen will be converted into glucose by the glycogenolysis। ठीक है, तो अभी ये स्टोर होने लगा, अब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन भी स्टोर होने लगा, तो उसका भी लिमिट है। लिवर एंड स्केलेटल मसल्स में ग्लाइकोजन स्टोरेज का भी एक लिमिट है। फिर क्या होता है, जब ग्लूकोज और आ रहा है तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो अमाइनो एसिड में भी कन्वर्ट होने लगता है। और ग्लूकोज आएगा तो और ग्लूकोज क्या होगा, अल्टीमेटली वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्री फैटी एसिड्स में एंड ट्राइग्लिसराइड में, अल्टीमेटली फैट में इन द एडिपोज टिश्यूज। इसीलिए बोलते हैं कि डोंट टेक कार्बोहाइड्रेट्स, बिकॉज इफ यू आर टेकिंग मोर कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली इट विल बी स्टोर्ड एज फैट ओनली, द पर्सन विल बी ओबीज। इंसुलिन ऑन लिपिड मेटाबॉलिज्म, इट विल facilitate the entry of free fatty acids from the blood into the adipocytes, and this free fatty acids ultimately converted into the triglycerides. And insulin strongly inhibits the enzymes hormone sensitive lipoprotein lipase within the adipocytes of triglycerides, and it will inhibit the release of free fatty acids. Insulin inhibits formation of keto acids in the liver from free fatty acids. Insulin stimulates de novo synthesis of fatty acids. This leads to formation of triglycerides molecules in the adipose tissue. Therefore, insulin causes fat deposition in the adipose tissue. Insulin on protein, it will stimulate amino acid uptake by the skeletal muscles and liver. Insulin inhibits protein breakdown in the muscles, hence release of amino acids from the muscles decreases। ठीक है, अमीनो एसिड्स को अपटेक करा लिया और अमीनो एसिड वापस ना आए वहाँ पे भी उनका ब्रेकडाउन इनिबिट कर दिया। देयरफॉर मस्कुलर ग्रोथ एंड एल्बुमिन प्रोडक्शन इन लिवर इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोलाइट्स पे भी इसका फंक्शन है, इट स्टिमुलेट्स ट्रांसफर ऑफ पोटेशियम एंड मैग्नीशियम फ्रॉम ECF टू ICF, यानी सेल के अंदर अब आ जाएगा पोटेशियम और मैग्नीशियम, एंड दिस कैटायंस विद इन लिवर मसल्स हेल्प ग्लाइकोजेनेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस। नाउ ग्लूकागॉन फ्रॉम द अल्फा सेल्स, इट इज़ अ 29 अमीनो एसिड अ सिंगल चेन पेप्टाइड हार्मोन। एक्शंस ऑफ ग्लूकागॉन इज जस्ट अपोजिट टू द इंसुलिन। इंसुलिन ने जो कुछ भी किया उसका अपोजिट करेगा, यानी ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इट विल इंक्रीज द ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करेगा और ग्लूकोज को बाहर निकालेगा। इंसुलिन क्या कर रहा था, इंसुलिन जो है ग्लाइकोजेनेसिस को कम कर रहा था, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म फ्रॉम द अमीनो एसिड्स एंड द फ्री फैटी एसिड्स। अल्टीमेट क्या होगा, जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन से ब्रेकडाउन होकर बाहर निकला, नया ग्लूकोज बना, तो क्या करेगा, अल्टीमेटली it will increase the blood glucose level and opposes the insulin. Protein metabolism में क्या करेगा, it will increase the uptake of amino acids by the liver. Ultimately, these amino acids act as a substrate for the gluconeogenesis. On lipid metabolism, glucagon increases the beta oxidation of fatty acids in the liver. यानी कि ग्लूकागॉन क्या है, जब भी ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा यानी हाइपरग्लाइसीमिया कराएगा। हाइपरग्लाइसीमिया कैसे कराया, ग्लाइकोजेनोलाइसिस करा दिया, ज़्यादा करने लगा, एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ा दिया। नेक्स्ट आता है सोमैटोस्टैटिन फ्रॉम द डेल्टा सेल्स ऑफ द पेनक्रियास। डेल्टा सेल्स मतलब जो अल्फा और बीटा सेल्स के बीच में सेल्स थी, डी सेल्स, तो वहाँ से ये क्या करेगा, इट विल इनहिबिट्स सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, स्लोज अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसका क्या है, इनिबिशन है ऑन बोथ द अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स, तो इंसुलिन भी कम कर देगा और ग्लूकागॉन भी कम कर देगा। लास्ट में छोटा सा है, दैट इज पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द एफ सेल्स।
ये क्या करेगा, इट विल इनहिबिट्स द सोमेटोस्टैटिन सिक्रीशन, गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसका इतना इंपॉर्टेंट हार्मोन का फंक्शन नहीं है। If we have to discuss the regulation of secretion of insulin, so we have to see three different aspects. One is substrate level concentration control of insulin, then hormonal level and then a neural level. ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल मतलब कि सबस्ट्रेट यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, राइबोज, ठीक है, तो ये सब जब भी बढ़ेगा ब्लड में तो अपने आप ही इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ने लगेगा। ग्लूकोज स्पेशली जब भी बीटा सेल्स के पास पहुंचता है तो ग्लूकोज बीटा सेल्स को बोलता है इंसुलिन सिक्रीशन करो, प्लस इंसुलिन फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, टू स्टिमुलेट करता है। और हो गया अमाइनो एसिड, वेन एवर अमाइनो एसिड्स आर देयर इन द ब्लड सर्कुलेशन दैट विल ऑल्सो हेल्प इन द स्टिमुलेशन ऑफ सिक्रीशन। अब बताएं हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल में कॉर्टिसोल, ACTH, ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन, ग्लूकागॉन, गैस्ट्रिन, CCK-PZ, सिक्रेटिन एंड GIP। यहाँ पे देख रहे हैं ग्लूकागॉन जो कि अल्फा सेल से निकला था फ्रॉम द पैनक्रियास इटसेल्फ, वो भी स्टिमुलेशन कर रहा है ऑफ इंसुलिन। यहाँ पे ये देखने वाली बात है, क्यों? क्योंकि वो पहले हाइपरग्लाइसीमिया कराता है। सेम ऐसे ही कॉर्टिसोल, ACTH, ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन हम बात करें तो ये भी इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दे आर कॉजिंग द हाइपरग्लाइसीमिया एंड दैट अल्टीमेटली गिविंग स्टिमुलस टू द बीटा सेल्स टू रिलीज द इंसुलिन। हार्मोन सोमेटोस्टैटिन जो कि डी सेल से निकलता है वो जो है इनहिबिट करता है टू द इंसुलिन सिक्रीशन। अब बात करें न्यूरल कंट्रोल की, तो न्यूरल कंट्रोल में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन एंड पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन दोनों रहता है। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, वेन एवर देयर इज ए हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द सर्कुलेशन, हाइपरग्लाइसीमिया है, तो बिकॉज ऑफ दैट पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन विल क्रिएट द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल की बात करें, पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल क्योंकि रिसेप्टर्स के थ्रू होता है, तो इफ इट इज एक्टिंग ऑन थ्रू बीटा रिसेप्टर्स विल इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड अल्फा रिसेप्टर्स will decrease the secretion of insulin. This is just an illustration of negative feedback whenever there is a low blood glucose level or hypoglycemia. So this will stimulate the alpha cells to secrete the glucagon and glucagon will go to the liver cells. क्या बोलेगा कि हमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा? ग्लाइकोजन जो स्टोर था उसको लाइसिस करेगा, यानी ग्लाइकोजेनोलाइसिस कराएगा और ग्लूकोज ब्लड में वापस जाएगा। और क्या करेगा? इट विल फॉर्म न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। कहाँ से? फ्रॉम द लैक्टिक एसिड एंड अमाइनो एसिड्स, और ग्लूकोज बनने लगा। दिस इज कॉलिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, नॉर्मल हो रहा है, और बढ़ते बढ़ते जब इंक्रीज होने लगा, जब हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो दैट विल गिव द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म टू द अल्फा सेल्स। अब वहाँ पे वो ग्लूकागॉन को कम कर देगा। ठीक है, ऐसा ही अगर इंसुलिन की बात करें तो वेन एवर देयर इज अ हाई ब्लड ग्लूकोज यानी हाइपरग्लाइसीमिया, इट विल स्टिमुलेट द बीटा सेल्स टू सिक्रीट इंसुलिन एंड इंसुलिन का काम करना, क्या काम करना है? इंसुलिन जो है ब्लड में से ग्लूकोज को हटाता है। कैसे हटाएगा? इट विल इंक्रीज द अपटेक ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल्स, यानी इट विल एक्सेलरेट फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल्स। स्पीड कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, यानी ग्लाइकोजेनेसिस कराना शुरू कर दिया, यानी स्टोरेज होने लगा ग्लूकोज का। इंक्रीज अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन अमाइनो एसिड बनने लगा, होने लगा, यानी एनाबॉलिक फंक्शन हो रहा है पूरी तरह से। स्पीड सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, लाइपोजेनेसिस करा दिया, और किसको कम कर दिया? ग्लाइकोजेनोलाइसिस को कम कर दिया एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम कर दिया, यानी ग्लाइकोजन को ब्रेकडाउन को कम कर दिया और न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो बन रहे थे थ्रू द अमाइनो एसिड्स एंड द लैक्टिक एसिड वो भी कम कर दिया। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल अपने अपनी फॉल होने लगा। ऑटोमेटिकली जब फॉल हुआ यानी हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, हाइपोग्लाइसीमिया होते ही उसको नेगेटिव फीडबैक मिला टू द बीटा सेल्स टू डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन, सॉरी रिलीज ऑफ इंसुलिन। दिस इज द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब बात करें अगर दिस अप्लाइड फिजियोलॉजी की, तो हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन इज़ वेरी रेयर, बट हाइपो सिक्रीशन बहुत कॉमन है। और हाइपो सिक्रीशन होगा तो हम जानते हैं कि अगर हाइपो इंसुलिन कम निकलेगा तो ब्लड में से ग्लूकोज नहीं हट पाएगा, नहीं हटेगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता रहेगा एंड दिस विल कॉज द हाइपरग्लाइसीमिया एंड द पर्सन विल अल्टीमेटली सफर फ्रॉम डायबिटीज मेलिटस।
ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कभी, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। डायबिटीज़ मेलिटस दो तरह का हो जाएगा, आईडीडीएम एंड एनआईडीडीएम। आईडीडीएम मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस यानी टाइप 1 डायबिटीज़, एंड एनआईडीडीएम मतलब नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस यानी टाइप 2 डायबिटीज़। In diabetes mellitus, there is an inability to utilize glucose by most of the body cells, along with the cells of satiety center. जो satiety center जो हमें बताता है कि भूख अब नहीं लग रही है, हमारा पेट भर गया है, वो भी ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाता है। तो जो पहली बात सेल्स यूज़ नहीं कर पा रही हैं, प्लस हमें सटाइटी फील नहीं हो रही है, देन द पर्सन विल फील द पॉलीफेजिया। पॉली मीन्स मैनीफेजिया मीन्स बार बार खाना, तो उसको भूख बार बार लगेगी। ठीक है, एक तो ये हो गया पॉलीफेजिया। अब क्या हुआ, जब ग्लूकोज जो है वो यूरिन से फिल्टर होके किडनी में जब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में फिल्टर होता है, तो उसका ग्लूकोज लोड ज़्यादा है, ज़्यादा लोड होने की वजह से ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो यूरिन में जाने लगता है। तो दिस इज़ कॉजिंग द पॉलीयूरिया, यानी पर्सन को बार बार यूरिन लगता है, क्योंकि ग्लूकोज जो है बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक इफेक्ट पानी को खींचता है, तो पानी भी ज़्यादा यूरिन में जाएगा, यानी पर्सन विल हैव ग्लूकोज इन द यूरिन प्लस यूरिन कंटेंट विल बी इंक्रीज, बार बार यूरिन लगेगा। अब यूरिन बार बार लग रहा है तो डेफिनेटली पानी की कमी हो रही है, सो द पर्सन विल फील द बार बार थर्स्ट। ठीक है, सो विल हैव पॉलीडिप्सिया, यानी पॉली मीन्स मैनी, डिप्सिया मीन्स थर्स्ट, तो उसको बार बार थर्स्ट लगेगा। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया। These are the books used for this learning session. Sujit Kumar Chaudhary, Tortora, C.C. Chatterjee, Mahapatra, and this one, Wharton and Colwell. तो ये था हमारा इंसुलिन, और हमने इसके साथ आज सीखा इसका एंटोगेनेस्टिक फंक्शन करने वाला ग्लूकागोन हार्मोन, एंड साथ में सीखा इन दोनों को इनहिबिट करने वाला सोमेटोस्टेटिन। ये था हमारा एंडोक्राइन पेनक्रियास, माइंड इट, जो कि ओनली 1% ऑफ द पेनक्रियास है। बाकी का जो 98% 99% जो पेनक्रियास है वो है एक्सोक्राइन पेनक्रियास। एक्सोक्राइन पेनक्रियास हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे जीआई सिस्टम। होप आप आज का ये आपको समझ में आया होगा। इंसुलिन, इट्स सिंथेसिस, इट्स सिक्रीशन, इट्स कंट्रोल ऑफ द सिक्रीशन, very important hormone, and for the practice purpose also, because it relates with the diabetes mellitus. So till then, enjoy study and have a nice day.